خدا واحد ہے، اور یہودیت جو کہ خدا کو ماننے والا پہلا مذہب جو ہے وہ بھی کہتا ہے کہ ایک ہی خدا کو مان اور اسی کی بندگی کر اور اسی کی پرستش کر، کیونکہ ایک خدا کے علاوہ کوئی دوسرا خدا زمین پر نہیں ہے اور نہ ہی ہو سکتا ہے، کیونکہ کتنے خدا ہیں؟ بتاؤ کتنے خدا ہیں؟ یہودیوں کے کتنے خدا ہیں؟ آگے بعد میں آگے مسیحیوں کے کتنے خدا ہیں؟ کتنے خدا ہیں؟ ایک ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مسیحیوں دے خدا تین ہوندے نے، کیسے ماننے کہ مسیحیوں دے خدا تین نے؟ مسیحیوں دے خدا کتنے نے؟ ایک ہے، اور وہ خدا اکیلا ہے۔ اور اس کے بعد ہم اپنے بھائی جو مسلم بھائی ہے وہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، خدا ایک ہے، موت ایک ہے۔ تین مذہب جو خدا کی پرستش کرتے ہیں، اور تین مذہب جو خدا کے کلوسی ہیں، تین مذہب جو خدا کی مدح صحیح کرتے ہیں، وہ سب ایک خدا کی بندگی کرتے ہیں اور ایک ہی خدا کو سجدہ کرتے ہیں، اور جو ہمارے لیے بھی واجب القدر ہے۔ اور ہم بھی کہتے ہیں کہ خدا ایک ہے، اور یہودیت نے بھی کہا خدا ایک ہے، اور مسیحیت نے بھی کہا خدا ایک ہے۔ اس کے بعد مسلم بھائیوں نے بھی کہا کہ قل ہو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد لم یکن له احد، کہ اللہ ایک ہے، اس نے کسی کو جنا نہیں ہے اور نہ وہ کسی کو جنتا ہے اور نہ کسی نے اس کو جنا ہے، کیونکہ وہ ایک ہے اور واحد ہے، اور واحد شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اس کا کوئی مشیر نہیں ہے، اس کا کوئی ثانی نہیں ہے، اس کا کوئی سمجھانے والا نہیں ہے، اس کا کوئی برابری کا نہیں ہے، کیونکہ وہ کیا ہے؟ اکیلا خدا ہے، اور اکیلے خدا کے لیے زوردار پریچا چلتا، پاسل کے لیے نہیں۔ ہاللیلویا ہاللیلویا۔ تو عزیزو، اس بات کے اوپر جب ہم سوچتے ہیں تو ہم بھی کہتے ہیں کہ خدا ایک ہے، خدا ایک کے لیے واحد ہوتا ہے، اور واحد جو ہوتا ہے وہ اکیلا ہوتا ہے۔ تو خدا کہتا ہے پیدائش کی کتاب کے اندر، پیدائش کی کتاب اس کا پہلا باب 26 آیت کے اندر لکھا ہے کہ خدا کہتا ہے آؤ ہم انسان کو اپنے شکل و صورت یا اپنے شبیہ کی مانند بنائیں۔ کتنے کیا کہا؟ آؤ ہم میں جمع ہے اور واحد میں خدا ہے۔ لیکن اس بات کے لیے ہمیں کنفیوژن ہوگی، اس بات کے لیے تھوڑی سی پریشانی ہوگی کہ خدا واحد ہے اور یہاں کہتا ہے آؤ ہم۔ مسیحیت بے شک جانتی ہے کہ تثلیث کا نعرہ ہے، لیکن ہم اس کی بھیس کو کھولیں گے، ہم اس کو پہچانیں گے، ہم اس کی ڈیٹیل کو جتنی لیاقت خدا نے دی ہے اتنی ہم جانیں گے کہ آؤ ہم۔ جب خدا بولتا ہے تو آؤ ہم کیا کہتا ہے؟ کیونکہ وہ واحد ہے، لیکن جمع کو وہ ہمارے سامنے شیئر کرتا ہے آؤ ہم، کیونکہ وہ جمع کو ہو جاتا ہے اور ہے تو وہ واحد اکیلا ہے، اور کہتا ہے آؤ ہم انسان کو اپنے چہرہ کی مانند بنائیں۔ جب آؤ ہم کا خدا لفظ بولتا ہے اپنے آپ سے وہ مخاطب ہوتا ہے، اپنی ذات سے وہ بات کرتا ہے، اور اپنے کلام سے وہ مخاطب ہو کے کہتا ہے کہ آؤ ہم انسان کو اپنی صورت اور اپنی شبیہ کی مانند بنائیں۔ کیونکہ خدا اپنے اندر کے کلام سے مخاطب ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ خدا کسی اور سے مخاطب بھی تو ہو سکتا تھا، لیکن خدا ہے، خدا اس کے ساتھ مخاطب ہوگا، اس کے ساتھ مشیری کرے گا، اس کے ساتھ رائے لے گا جو خدا کا برابری کا ہوگا۔ کیا خدا کا برابری کا کوئی دوسرا ہے؟ کہیں جی خدا کی برابری کا کوئی دوسرا ہے؟ نہیں ہے، وحدہ شریک ہے، اکیلا ہے، اس کا کوئی ثانی نہیں ہے، اس کو رائے دینے والا نہیں ہے، اس کو کوئی مشورہ دینے والا نہیں ہے، کیونکہ وہ اکیلا ہے، اور اکیلا ہونے کے ناطے وہ کہتا ہے کہ میرا ثانی میرے برابر کا کوئی بھی نہیں، اس لیے میں اپنے آپ سے بات کروں گا، اپنے اندر کے کلام سے مخاطب ہوگا، اپنے اندر کے کلام سے باتیں کروں گا اور شیئر کروں گا، کیونکہ میرا کلام میرے برابری کا ہے، اور میرا کلام جو میرے اندر جذب ہے وہی میں اسی سے بات کر کے کہتا ہوں آؤ ہم انسان کو اپنی شکل اور اپنی شبیہ پر
अपनाए। क्या कहता है खुदा? किससे बात करता है? अपने अंदर के कलाम से बात करता है। इसलिए है तो बात, लेकिन यहां आकर वो जमा हो जाता है। जब कहता है आओ हम, जमा इसलिए होता है अपने अंदर के कलाम से बात करता है, अपने आप से मुखातब होता है, अपनी जात से बात करता है, क्योंकि वो देखता है कि मेरी तरह या मेरी मानिंद कोई दूसरा नहीं। तो इसलिए अपने अंदर के कलाम से जब बात की तो अपने कलाम से कहता है आओ हम वहां जाकर उनकी ज़बान में इख्तिलाफ डालें। फिर दूसरी बार कहा और वहां आकर जो बाबल का बुर्ज बना रहे थे उनकी ज़बानों के अंदर इख्तिलाफ डाल दिया। और वहां भी कहा आओ हम उनकी ज़बान को करके इख्तिलाफ डालें। और यहां आकर फिर वो जमा होता है, फिर वो अपने अंदर के कलाम से मुखातब होता है, अपनी जात से कलाम करता है। उसके बाद तीसरे नंबर पे पैदाइश बाप की बयान के अंदर लिखा है इंसान नेकोबद की पहचान में हम में से। फिर कहा खुदा ने हम में से, गौर से सुनिएगा, हम जमा है या वाहद? हम जमा है। और जमा वो बोलता है अपने आप, अपनी जात, अपने अंदर के कलाम से कहता है आओ हम, फिर जमा कर देता है, क्योंकि उसका कोई सानी नहीं है। इसलिए अपने अंदर के कलाम से, अपनी जात से मुखातब होता है और कहता है कि इंसान में से एक, इनके हम में से एक ही मर्द हो गया, हमें लेना है सिर्फ खुदा कलाम। उसके बाद चौथे नंबर पर हम अपने भाई मुस्लिम, जो हमारे भाई हैं, जो हमारी भी किताब है उसके सूरत अल-अंबिया उसकी 92 और 51 आयत के अंदर लिखा है कि मरियम को याद करो, हमने उसकी तरफ अपनी रूह फूंक दी। किसको याद करो? मरियम को याद करो, हमने उसकी तरफ अपनी रूह फूंक दी। यहां आकर भी खुदा वाद नहीं बल्कि जमा हो जाता है कि हमने उसकी तरफ, मकस्सा मरियम की तरफ अपनी रूह फूंकी। और वो रूह जो हम सब जानते हैं कि रूह अल्लाह, और इसका जो बेन मफूल वो चेंज हो जाएगा। इशारा करेंगे सिर्फ। हालेलुया। जब हमने ये सब बातें देखी तो 4 रेफरेंस के मुताबिक खुदा ने हम का और जमा का लफ्ज इस्तेमाल किया, तो वो जमा बन जाता है। और हम इस बात के ऊपर गौर करेंगे और सोचेंगे, देखेंगे और बात और सुनेंगे। मैं यकीन करता हूं अगर गौर से सुनेंगे ना इस बात को, आप जहां कहीं भी होंगे आप हर इंसान को बआसानी जवाब दे सकते हैं। और उसके बाद अपनी जात से कलाम करने वाला खुदा, अपने अंदर के कलाम से मुखातब होने वाला खुदा, अपने मुंह के वर्ड जो निकलते हैं उससे मुखातब होने वाला खुदा, जब उसके यही जो उसके अंदर कलाम है, उसके अंदर खुदा की वो नूर है, खुदा का जलाल है, जिससे बातें करता है और जिससे मुखातब होता है। और जब अपने आप से बातें करता करता होगा, उसने अपने अंदर के कलाम को शेयर करना शुरू कर दिया, सुनाना शुरू कर दिया, आगे लोगों को, आगे दूसरी हस्तियों के लिए वो ढेरना शुरू कर दिया। तो खुदा के मुंह से जब कलाम निकला तो वही कलाम में नफ्सी जो था, इनके अंदर के कलाम से खुदा बातें करने वाला, वो कलाम में शख्स बन गया। क्योंकि खुदा के मुंह से निकलने वाला कलमा, खुदा के मुंह से निकलने वाला कलाम, खुदा के मुंह से वही कलाम जो निकलता है तो कलाम में शख्स बन जाता है। और कलाम में शख्सी जब वो खुदा का कलाम बना तो यकीनन यहाँ लफ्ज़ आता है कि खुदा मुतकल्लम है। खुदा क्या है? मुतकल्लम है। और मुतकल्लम के मिनी है कि कलाम करने वाला। इसके क्या मतलब है? मुतकल्लम के कलाम करने वाला। और कलाम करने वाला के कलाम में शख्सी, खुदा के मुंह से वर्ड जब निकलते हैं तो वो खुदा मुतकल्लम बन जाता है। और मुतकल्लम जब बनता है तो उसके मुंह से कलाम निकलता है। तो कलाम और मुतकल्लम दोनों जुदा नहीं है। कलाम करने वाला और कलाम जो उसके मुंह से निकलता है वो दोनों जुदा नहीं है। वो दोनों यानी कि ज्यादा में हम शुमार भी करते हैं, लेकिन है वो दोनों का वजूद एक है। वो दोनों की वजूद देश एक है, क्योंकि कलाम और मुतकल्लम दोनों एक बाहम है। और
आसमानी बातों को ले तो आप अगर कोई भी बात करे तो आपकी बात, आपके मुंह से निकलने वाला हर वर्ड, हर लफ्ज आपसे जुदा नहीं हो सकता, क्योंकि आप बोलेंगे आपकी जुबान की लैंग्वेज की और जब बातें हैं आपसे कभी अलग नहीं है। आपकी बातें और आप दोनों एक है, कभी भी आपको कोई दो नहीं कह सकता। यकीनन खुदा के मुंह से जब कलाम निकला तो वो खुदा मुतकल्लम बन गया, यानी कि कलाम करने वाला बन गया। और जब कलाम करने वाला बना तो कलाम निकला, तो कलाम और मुतकल्लम दोनों एक है। और उन चीजों को खुदा कहता है आओ हम इंसान को अपने शबीह और शक्ल पर बनाएं, क्योंकि कलाम और खुदा दोनों है तो एक है, लेकिन उसकी कलाम के मुंह की जो उसके मुंह से निकलने वाला कलाम जो है उसकी शिरक है, वो कलाम है, वो नूर है, वो जलाल है जो खुदा से निकलता है और उससे जुदा नहीं है। हालेलुया। वो दोनों क्या है? एक है। और खुदा से मुंह से निकला कलाम क्यों निकला? जब हम बात करते हैं, जब हम बातें करते हैं तो बात किसी वजूहात के लिए की जाती है। जब हम बात करते हैं तो किसी काम के लिए बात की जाती है। वैसे हम खामोश बैठेंगे, वैसे हम क्या होंगे? खामोशी के साथ बैठेंगे। अगर आपने किसी को मुखातब करना है ना तो उसको क्या कहना है? किसी को बुलाना है तो कहना है कि किसी को जो भी काम है आपने काम करवाने या करने के लिए बोलना है और कहना है अपनी बात को शेयर करना है। तो यहां पर ये मेरे कहने का जो मकसद है कि खुदा ने जब अपने मुंह से कलाम निकाला तो कलाम निकाला क्यों? क्योंकि खुदा कलाम करने लगा और खुदा के मुंह से निकलने वाला कलाम दुनिया की चीजों को वजूद में लाने लगा और आसमान की चीजों को और जमीन की चीजों को और जमीन के ऊपर रहने वाली हर चीज को कलाम के वसीला से एक नया वजूद बख्शा गया। क्योंकि हम जब एक रेफरेंस लेते हैं कुलसियों की किताब पौलुस रसूल की मार्फत लिखी गई, उसका पहला बाब और उसकी 15 पर लिखा हुआ है। गौर से सुनिएगा। वो अनदेखे खुदा की सूरत और तमाम मखलूकात से पहले मौजूद है। क्या पढ़ा है? वो अनदेखे, अनदेखे, लेकिन इसको देखा नहीं है आज तक। हमने जिसको देखा नहीं है वो अनदेखे खुदा की सूरत और तमाम मखलूकात से पहले मौजूद है। सब चीजें उसी के वसीला से पैदा हुई। किसके वसीला से? तो खुदा के मुंह से कलाम निकला और कलाम ने जमीन को वजूद दिया और कलाम ने आसमान को वजूद दिया और कलाम ने हर एक जड़ी बूटी को वजूद दिया और कलाम ही ने सूरज, चांद, सितारे, मौसम, जाड़ा, तपश और हर चीज कलाम ने उनको वजूद दिया। तो कलाम खुदा के मुंह से निकला तो कलाम ने हर चीज को असर मुस्तकीम पैदा कर दिया। किसने किया है? किसने किया है? कलाम ने हर चीज को असर पैदा किया है। कलाम की वजह से जमीन वजूद में आई, कलाम की वजह से जमीन वजूद में आई है और खुदा के कलाम जो उसके मुंह से निकला और कलाम ही की वजह से आसमान तंबू की तरह तान दिया गया और कलाम की वजह से लिखा है कि जमीन के नीचे कोई सतूर नहीं है, बल्कि कलाम ने अपनी कारागरी दिखाई। जो अमसाल की किताब के अंदर लिखा हुआ है कि इससे पेशतर कि जमीन बनी मैं खुदा के सिल्क के अंदर थी, इससे पेशतर क्या समान तंबू की तरह ताना जाए, लेकिन मैं खुदा के अंदर थी और मेरा ही नाम खैर है और मेरा ही नाम हिकमत है और मेरा ही नाम अकल है और मेरा ही नाम बनाई है और मैं ही खुदा के मुंह से निकली और कलाम बन गई और कलाम के वसीला से हम सबको जिंदगी मिली और कलाम के वसीला से जमीन, आसमान, हर चीज असर पैदा हो गई। किसकी वजह से पैदा हुई है? मुझे बताइएगा, मुझे आपसे भी सीखना। किस वजह से पैदा हुई है?
कलाम की वजह से, जो खुदा के मुंह से निकला। कितनी चीजें बताई, ये सब कलाम की वजह से पैदा हुई है। आगे जाकर इसको ओपन कर रहे हैं। ये है क्या? कलाम शख्सी। खुदा ने कलाम किया तो कलाम करने लगा, तो कलाम में शख्सी बन गया। लेकिन पहले कलाम ना किया तो अपने आप से मुखातिब होता था। कलाम इसके अंदर था और वो कलाम में नफ्सी था, और कलाम में नफ्सी के बाद कलाम में शख्सी बना, और कलाम में शख्सी के बाद यही कलाम जब हर चीज को तकमील करता है, मुकम्मल करना शुरू कर देता है, तो कलाम में तकमीली बन गया। हालेलुया। क्या बन गया? कलाम में तकमीली, क्योंकि हर चीज को तकमील किया, कंप्लीट किया, मुकम्मल किया, बनाया। किसने बनाया? फिर मैं याद दिलाना चाहता हूं, शायद मुझे भूल जाए। किसने बनाया? हर चीज को किसने बनाया? कलाम ने। और कलाम वो निकला किसके मुंह से था? खुदा के मुंह से निकला कलाम, वही कलाम में शख्सी बना, और उसके बाद वो कलाम में तकमीली, हर चीज को कंप्लीट, मुकम्मल करता चला गया, और चीज का वजूद नए सिरे से मिल गया। क्योंकि खुदा एक रूह के मुताबिक काम करता है। जब हर चीज को वजूद मिल गया और हर चीज असर पैदा हो, तो कलाम ने देखा कि मैंने जमीन के ऊपर क्या कर दिया है? रौनक। जमीन के ऊपर मैंने क्या कर दिया है? रौनक को दोबाला कर दिया है। जड़ी बूटियां पैदा हो गई है, जानवर, परिंद, हिवानात, नबातात, हर चीज बन चुकी है, और हर चीज को मैंने मुकम्मल कर दिया है। तो वही कलाम में तकमीली जो था, और वही कलाम में मुजस्सम बनने लगा। और यूहन्ना ने कहा कि कलाम मुजस्सम हुआ और फजल और सच्चाई से कबूल होकर हमारे दरमियान रहा, और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसा बाप ने औलाद का जलाल। हालेलुया। वही कलाम नफ्सी, वही कलाम शख्सी, वही कलाम तकमीली, और वही कलाम में मुजस्सम बन गया। और जब कलाम मुजस्सम हुआ तो कौन था? बताइएगा, कौन था? यीशु मसीह के लिए जोरदार तारीफ चाहिए। जो यीशु को मानते हैं वो जाएंगे, दूसरे नाम जाएंगे। ये यीशु मसीह को मानते हैं, ये कौन बना है? कलाम में पानी पी के भाई हल जाओ, त्रे लग दी, हल जाओ ना, प्यास लग दी, भूख भी लग दी। एग्जाम्पल कि वही कलाम में मुजस्सम जब बनता है तो फौरी हमारे दिल के अंदर वही बात आ जाती है कि जब्राइल ने कहा कि कलाम तुझ पर नाज़िल होगा और तू क्या होगा? वो खुदा ताला का बेटा कहलाएगा। और वही कलाम नए अहद के अंदर आ गया, और कलाम मुकद्दस के अंदर यूहन्ना के अपनी अंजील के अंदर लिख दिया कि कलाम मुजस्सम हुआ है, उसके वसीले से सब चीजें पैदा हुई है। हम पहले बाब से लेकर, पहली आयत से लेकर 10 आयत तक का मुताले करें तो लिखा है, कलाम की तारीफ के अंदर सब कुछ लिखा गया है कि कलाम ही मुजस्सम हुआ है। और यानी कि जब कलाम मुजस्सम हुआ तो उसने किस तरीके से वो मुजस्सम हुआ कि कलाम ने नए अहदनामे के अंदर आकर क्या ले लिया? चेहरा ले लिया। हालेलुया। क्या ले लिया? कलाम ने मुजस्सम होना, चेहरा लेना, लिफाफा लेना, जिसामत लेना, जिस्मानी। तो कलाम वही मुजस्सम हो गया, इंसानी चेहरा ले लिया। और इंसानी चेहरा जब कलाम ने लिया तो किसकी खातर लिया? बताइएगा, किसकी खातर? चंद लोग दस दिन बाकी बड़े पता नहीं। कलाम ने इंसानी चेहरा किनके लिए लिया? किनके लिए? हमारे लिए लिया। हम कौन है? हम इंसान है ना, हम इंसान। हम शरीयत के मुताबिक बैत कमेली तक पहुंच सकते थे, हम शरीयत के मुताबिक रास्तबाज ठहर सकते थे। जहां आकर एक खूबसूरत एग्जाम्पल पैदा होती है। एक चरवाहा जिसकी एक भेड़ गुम हो गई,
और वो भेड़ अपनी बाकी भेड़ों को छोड़कर वो एक भेड़ की तलाश करने चल पड़ा और बाकी कहा ये तो मेरे बाड़े के अंदर है, इनको तो कुछ नहीं होगा, लेकिन एक भेड़ जो है वो भेड़ मुझसे खो गई है, उसे कोई दरिंदा फाड़ डालेगा, उसे कोई प्रॉब्लम हो जाएगी, लेकिन मैं रहीम कादर और रहम से भरा हुआ चरवाहा हूं, मैं उस भेड़ की तलाश करूंगा। उस भेड़ की तलाश करने के लिए वो चल पड़ा और जैसे जैसे वो भेड़ के पास जाता है, भेड़ भागती हुई आगे भाग जाती है। वो देखती है मेरे मालिक के हाथ में लाठी है, मेरे मालिक के हाथ में सोटा है, वो मुझे मारेगा क्योंकि मुझे पता है मालिक मेरा गुस्सीला है, वो मुझे नहीं माफ करेगा, मैंने गलती की है, मैंने गुनाह किया है, मैंने उसके बाकी माता भेड़ों को छोड़ा है, अब मुझे वो माफ नहीं करेगा। बल्कि आगे भागी और उससे भी आगे निकल गई और भागी और आगे निकल गई। चरवाहा पीछे पीछे भाग रहा है, मेरी बात सुनो, मैं कुछ नहीं कहूंगा। वो कहते नहीं, तू मुझे क्या मारेगा? लाठी से मारेगा, मैंने तेरा गुनाह किया है, मैंने तुम्हें छोड़ा है, अब तुम मुझे माफ नहीं करेगा। चरवाहे ने देखा कि इस तरह पेड़ मेरे काऊ को नहीं आना की आखा। चरवाहे ने इस तरह पेड़ ने मेरे काऊ को नहीं आना, अब मैं क्या करूंगा? भेड़ जैसा लपाटा पहनूंगा, भेड़ जैसी ऊन पहनूंगा, भेड़ जैसा लिबास पहनूंगा, भेड़ जैसी पोशाक पहनूंगा, भेड़ जैसा बन जाऊंगा, ताकि मैं जब उसके पास जाऊं तो वो कहे ये मेरी हम जिन्स है। भेड़ क्या कहे पंजाबी में? ए मेरे वर्गी है। ए भेड़ की है मेरे वर्गी है, जेड़ी मेरे वाला भी पई। तो क्या हुआ, जब उस चरवाहे ने भेड़ का लिफाफा पहन लिया और लाठी रख दी और जैसे जैसे वो छलांगे लगाता हुआ भेड़ के पास पहुंचा तो भेड़ भागी नहीं है, भेड़ खड़ी नहीं है, भेड़ के अंदर खौफ नहीं आया, बल्कि भेड़ समझकर उसके नजदीक हो गई, उसके क्लोजी हो गई, उसके पास चली गई। भेड़ भी मैं करती है और उसने कहा कि अब मैं उसकी बोली बोली, उसकी लैंग्वेज बोली, और जैसे उसने भेड़ को उठाया और गले लगाया, गोद में उठाया तो कहा मैं तेरा चरवाहा हूं, मैं तेरा मालिक हूं, मैं तेरा निजात देने वाला हूं, मैं तेरा बख्शी देने वाला हूं, मैं तुझे बचाने आया हूं। तू समझती थी कि शायद मैं तुम्हें मारूंगा, हाँ मैं जानता हूं कि तू कौन है, तू वो खोई हुई भेड़ है। हम कहें सब हम क्या थी? खोई हुई भेड़, डरती कांपती और खुदा से दूर और निजात से कोसों दूर, क्योंकि निजात के लिए तो हम तरसते थे, लेकिन जब हम भटकी हुई भेड़ों ने अपने हम जिन्स जैसे अपने जैसे उस शख्स को देखा तो कामिल इंसान था, तो कामिल खुदा था, तो कामिल खुदावन था, उसने लिफाफा पहना हुआ है और वो जब देखता है कहता है कि मैंने चेहरा लिया है ऐ इंसान तेरे लिए, क्योंकि मेरे हाथ में अब वो लाठी नहीं है जो तुम्हें मारती है, मेरा पैर गस्ब अब तेरे लिए नहीं है, अब मैं कोई यहोवा गुस्सीला खुदा नहीं हूं, बल्कि अब मैं रहम से भरा हुआ खुदा हूं और रहम के साथ जमीन पर आया हूं। इसीलिए मैंने मुकद्दसा मरियम से जिस्म लिया, क्योंकि मैं तो नूर हूं, मैं तो खुदा के नूर से निकला हुआ कलाम हूं, इसलिए कि कलाम जो है वो रूहानी है और बाप जो है वो रूहानी है और खुदा जो है वो रूहानी है, और रूहानी खुदा जिस्मानियत के साथ उसका कोई कांटेक्ट नहीं है। क्या खुदा रूहानी है कि जिस्मानी है? बताइएगा मुझे, रूहानी की होता है जिस्मानी की होता है? असी कौन आ? असी जिस्मानी है ना, तो की रख रहे हैं? जिस्म रख रहे हैं, असी जिस्मानी, खुदा की है रूहानी। असी जिस्मानी होने के नाते की करने पैदाइश लेने,
یہاں پر ایک اور بات واضح ہوتی ہے، یہاں پر ایک اور بات اجاگر ہو گئی کہ جسمانی بندہ پیدائش لیتا ہے، پیدائش کرتا ہے، اور دنیا کے اندر اسی طرح ایک پیڑھی جو ہے وہ رواں دواں ہے، لیکن خدا جو ہے وہ روحانی ہے، وہ انسان کی طرح جسمانی نہیں کہ بچے جنے، خدا انسان کی طرح جسمانی نہیں کہ وہ پیدائش کرے، کیونکہ خدا روحانی ہے، اور اس کے منہ سے نکلنے والا کلمہ کلام کیا ہے؟ وہ بھی روحانی ہے، وہ بھی روحانی، اور خدا کا روح اور خدا کا کلام جب مجسم ہوتا ہے اور مجسم ہوا اور مقدسہ مریم کے پیٹ کے لیے مبارک بادی بنا اور برہم کے اندر پیٹ کا پھل مبارک پھیلا، تو اسی وقت اسی کلام نے مقدسہ مریم سے وجود لیا، مقدسہ مریم سے جسم لیا، مقدسہ مریم سے وجود لے کر وہ دنیا کے اندر ایسی پیٹ بن گیا، ہمارے طرح بن گیا، کیونکہ ہمیں اس نے نجات کا ایک ذریعہ اپنایا کہ ہم نجات پا جائے، ہم بخل سے پا جائے، ہمارے جیسا وہ انسان بن گیا۔ بنا کون؟ کلام، وہی کلام جو پیچھے کلام میں نفسی کہلایا خدا کے اندر تھا، وہی کلام جو کلام میں شخصی کہلایا خدا کے منہ سے نکلا، اور وہی کلام جو کلام میں تکمیلی کہلایا، کیونکہ خدا اس کلام کے وسیلے سے اس نے زمین آسمان ہر چیز کو پیدا کیا، اور وہی کلام آگے آ کر کلام میں مجسم بنا، اور کلام میں مجسم جب بنتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میرے وسیلے سے ہر چیز وجود میں آئی ہے، اور میں ہی نے ہر چیز کو وجود بخشا ہے۔ اب رہ گئی تھی، کلام کہتا ہے ایک بات، کون سی بات؟ ایک بات، جو انسان گناہ کے اندر تھا تو انسان اپنی قابلیت کے مطابق کبھی بخشش کا ذریعہ نہیں بن سکتا تھا، اپنی نیکیوں کے مطابق انسان کبھی بخشش کا ذریعہ نہیں بن سکتا تھا، اسی لیے کہ جو مقدسہ مریم سے کلام نے جسم لیا تو اسی جسم کو وہ صلیب پر دے دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اے باپ ان کو معاف کر، یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں، اور جسم کے وسیلہ سے ہم نجات پاتے ہیں، اور جسم کے مطابق کہتا ہے کہ لو کھاؤ میرا بدن اور پیو میرا خون، تاکہ میری یادگیری کے لیے یہی کرنا۔ اس جسم کو وہ پھر بھی ہمیں کھانے کے لیے دیتا ہے، لہو کو ہمیں پینے کے لیے دیتا ہے، کیونکہ جسم کا مین جز جو ہے وہ کیا ہے؟ خون، بلڈ، لہو۔ اگر لہو کے اندر جان ہے، اگر لہو جسم سے نکل جاتا ہے، ضائع ہو جاتا ہے، تو کیا انسان زندہ رہ سکتا ہے؟ کیا لکھا ہے کلام مقدس کے اندر کہ تمہارے خون کے اندر تمہاری کیا ہے؟ جان ہے، اور اس نے کہا کہ میں وہ چرواہا ہوں جو اپنی بھیڑوں کے لیے جان دیتا ہوں، اور جو میرے بعد آئیں گے وہ سب چور و ڈاکو ہوں گے، اور تم مجھ پر ایمان رکھتے ہو تو خیر اچھا کرتے ہو، کیونکہ میں باپ سے نکلا ہوں اور باپ میں اب واپس جاتا ہوں، اور باپ مجھ میں ہے اور میں باپ سے ہوں۔ وہ کہتا ہے کہ اگر میں اپنے باپ سے نہ ہوتا تو تم مجھے دیکھتے کہ میرے کام باپ جیسے نہ ہوتے۔ میرے کیا کام کیا ہوتے؟ باپ جیسے نہ ہوتے۔ تو یہی کلام نے میں نے جو بولا ہے پیچھے کلام نفسی، کلام شخصی، کلام تکمیلی، کلام مجسم کہلایا، تو یہاں آ کر یہی کلام ہمیں نجات کا ذریعہ بنانے کے لیے ہمیں برکت دینا چاہتا ہے۔ چرواہا بن گیا، اور چرواہا بن کر کہتا ہے میری کھوئی ہوئی بھیڑوں میرے کیا آ جاؤ، پاس آ جاؤ تاکہ میں تمہیں گود میں لوں۔ ہم دعا کرتے ہیں اے یسوع ناصری ہمیں اپنے دائیں ہاتھ کے کیا کر نیچے لے لے، اے یسوع ناصری ہمیں اپنی باہوں میں لے لے، تاکہ ہمارے اوپر کسی چیز کی کبھی بھی پرابلم نہ ہو سکے۔ وہ کلام مجسم جو کہ یسوع کے روپ میں ہمارے درمیان آیا، اور ہم نے اس کا کیسا جلال دیکھا؟ جیسا باپ کے
इकलौते का जलाल। और वो कलाम जो है वो रूहानी तौर पर तो खुदा से निकला हुआ है, लेकिन हमें समझाने के लिए वो कलाम क्या कहलाता है? बेटा। हम जिस्मानी हैं, इसलिए वो जिस्मानी वर्ड खुदा इस्तेमाल करता है तो वो कलाम खुदा से निकला है, लेकिन हम जिस्मानी हैं। जैसा हमारे जैसे उसने चेहरा लिया, वैसे वो कहता है कि मैं खुदा का बेटा हूं, क्योंकि वो जिस्मानी तौर पर नहीं बल्कि रूहानी तौर पर कहता है हमें समझाने के लिए, लेकिन लफ्ज़ जो है वो जिस्मानी इस्तेमाल करता है। हालेलुया। उसके बाद ये बात जब कंप्लीट होती है तो यीशु ने क्या किया कि वो पैदा हुआ और 3.5 साल मनाती की और मर गया, और मरने के बाद वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, और जिंदा होने के बाद फौरी आसमान पर चला गया। क्यों? जिंदा होने के बाद फौरी आसमान पर चला गया। कैसे? 40 रात दिन यीशु जमीन पर रहा। इस बात के लिए ताली दीजिएगा जोर के साथ। यीशु कितने दिन मरने के बाद जमीन पर रहा है? 40 रात दिन वो जमीन पर रहा और अपने आप को पाप रूप करवाया कि देखो मेरे हाथों के अंदर वो कील है, वो निशान के हैं, मेरे पाँव के अंदर वो कीलों के निशान है, मेरी पसली को चेक करो, मैं वही हूं जिसकी पसली के अंदर नेज़ा मारा गया। तो शागिर्दों ने देखा और कहा हाँ खुदावंद है, वाकया ही तू है। और उसके 40 रात जमीन पर रहने के बाद वो बाद में कहां चला गया? बाद में वो आसमान पर गया, और आसमान पर जिंदा होकर गया तो फतेहमंदी के चीज के ऊपर पाकर गया। किसके ऊपर? यीशु ने मौत के ऊपर फतेहमंदी हासिल की है। किसने की है? फतेहमंदी किसने हासिल की मौत के ऊपर? यीशु ने मौत के ऊपर फतेहमंदी हासिल की। वही यीशु तो पीछे खुदा के मुंह से निकलने वाला कलाम है, यही अब यीशु बनकर मर जाता है और मौत पर फतेहमंदी पाकर आसमान पर चला जाता है। क्या कोई शख्स मौत के ऊपर फतेहमंदी पाकर जिंदा हुआ है आज तक? कौन जिंदा हुआ? फिर खुदा में यीशु हुआ। तो फतेहमंदी पाना क्या इंसान के बस की बात है या खुदा के बस की बात है? फतेहमंदी हासिल करना मौत के ऊपर ये इंसान के बस की बात है या खुदा के बस की बात है? ये सिर्फ खुदा के बस की बात है और खुदा के कलमा के बस की बात है और खुदा के मुंह से निकले हुए वो वर्ड की जरूरत है, वो ताकत है कि वो यीशु बनकर मर तो जाता है, लेकिन उसे पता था कि मुझे अब जान देने का भी इख्तियार है और जान को वापस लेने का भी इख्तियार है। और ये इख्तियार उसने कहा मुझे किसने दिया? ये इख्तियार मैंने अपने बाप से पाया। वो इख्तियार अपने बाप से पाता है, और वो कलाम जो खुदा के मुंह से निकला जो पहले उसके अंदर था, वो कलाम में नफ्सी खुदा की जात कहलाता है, और वही कलाम बाहर निकलता है तो यीशु बन जाता है। और जिस्मानी तौर पर हमें समझाने, हमें बचाने के लिए वो यीशु बनकर मौत के ऊपर गलबा पाता है। जब उसने मौत के ऊपर गलबा हासिल किया तो उस वक्त पता चला कि ये तो गालिब है। खुदा क्या है? खुदा गालिब है, खुदा ग़यूर है, और खुदा कादिर है, और खुदा हर चीज के ऊपर कुदरत वाला है। इस मौत के स्टेप के ऊपर हमें आश्कारा हो गया कि यीशु वाकया ही खुदा का कलमा, रूहे अल्लाह और खुदा के वजूद से निकला हुआ कलाम है, जिसका मुकाबला ना तो जमीन पर कोई शख्सियत कर सकती है और ना जमीन के नीचे वाली शख्सियत कर सकती है, ना आसमान के ऊपर की कोई फरिश्तगान में से उसके मध्य मुकाबला हो सकता है, इसलिए कि वो गालिब है और गलबा पाया और मौत के ऊपर उसने गलबा पाकर दिखा दिया।
और जब वो जमीन के ऊपर होता है, मौत से पहले की बातें आप उसकी याद करें। अभी वो मरा नहीं था, तो वो कहता है यूहन्ना की अंजील के अंदर, राह, हक और जिंदगी कौन है? मैं हूं। राह, हक और जिंदगी मैं हूं। जो मुझ पर ईमान लाएगा हलाक ना होगा, बल्कि हमेशा की क्या पाएगा? जिंदगी पाएगा। ये गालिब दावा कर सकता है, कोई और दावा नहीं कर सकता। हालेलुया। जो गालिब है वो ही दावा कर सकता है। राह भी असली मैं हूं और हक भी मैं हूं। और हक जो बोला गया है पुराने ऐतनामे के अंदर, वो कलाम को बोला गया है, तेरा कलाम हक है, सच्चाई है। तो यही यीशु कहता है, राह भी मैं, हक भी मैं और जिंदगी भी मैं। और वो जिंदगी जो जमीनी नहीं, जमीनी है वो नहीं, बल्कि कहता है हमेशा की जिंदगी। और फिर कहता है यही जो मौत के ऊपर गलबा पाता है, कहता है कि जो आसमान से रोटी उतरी वो मैं हूं। और जो तुम्हारे बाप दादा ने मन खाया वो आसमानी रोटी नहीं थी, बल्कि उन्होंने खाया और मर गए। बिल्कुल वो 6 लाख के 6 लाख जंगल के अंदर ही क्या हो गए? ढेर हो गए। ताकि उन्होंने मन सलवा खाया था, उन्होंने रोटी, वो आसमानी रोटी क्या की थी? वो खाई थी। वो कहते कि वो जिंदगी की रोटी नहीं, बल्कि मैं जिंदगी की रोटी हूं। जो मुझे खाएगा वो हमेशा तक और हमेशा की जिंदगी, जो आखिरी अपनी जिंदगी है, वो हासिल करेगा। और ये दावा भी वो कर सकता है जो गालिब है, यूर है, ताकत वाला है, रहीम है, कादिर है। उसके अलावा कोई भी दूसरा गालिब ये दावा नहीं कर सकता। गौर से सुनिएगा, ये आपकी भलाई के लिए है। उसके बाद बड़ा हैवी किस्म के वर्ड बोलता है यीशु। जब वो आसमान पर जाने लगा तो शागिर्दों को इकट्ठा करता है और कहता है वही बात जो उसने पीछे आसमान और जमीन को वजूद दिया, वही कलाम यीशु बनकर बोला और कहा, सुनिएगा क्या कहा? आसमान और जमीन का कुल इख्तियार मेरे पास है। कैसे कहा? यीशु ने, गालिब ने और वही कुदरत वाले ने कहा आसमान का इख्तियार भी मेरे पास और जमीन का इख्तियार भी मेरे पास, हर चीज में कुदरत मेरी। और साबित कैसे हुआ? पीछे खुदा कहता है, खुदा के मुंह से निकलने वाला, गौर से सुनने का कलाम कहता है कि हो जाओ। खुदा के मुंह से कलाम निकला, उसने क्या कहा? हो जाओ। तो कलाम ने कहा जो खुदा के मुंह से निकला, उसने कहा हो जाओ। हो गया। कैसे हो गया? आधा पानी आसमान को चढ़ गया, आधा पानी नीचे को चला गया। और कलाम ने कहा ऐ पानी जमीन को दे। कहा कलाम ने, और पानी ने जमीन दे दी। किसने कहा? कलाम ने। क्योंकि कलाम का हुक्म, कलाम का इख्तियार पानी के ऊपर भी है। कलाम का हुक्म और कलाम का इख्तियार हवा के ऊपर भी है। और आदम को जब तख्लीक करता है, हाथों से संवारता है और कहता है आदम, किसको आवाज दी? दम को, हवा को। क्या कहा? आदम। और कहा किसने? खुदा के मुंह से निकलने वाले कलाम ने कहा दम आ और आदम के अंदर चला जा। हवा ने बात मानी और आदम के अंदर चली गई और कहा कि भाई साडी फूक निकल जावे तसी किया डेड बॉडी। हवा, यही हवा जिसको कलाम ने कहा इसके अंदर दाखिल हो जा। और कलाम की बात को हवा ने माना और आगे आकर वही यीशु जो कलमा नफ्सी कहलाता है, कलमा शख्सी कहलाता है, कलमा मकतूबी कहलाता है और कलमा मुजस्सम होता है, वही यीशु बनकर इस कश्ती के अंदर बैठता है। तो शागिर्द कहते हैं ऐ खुदावंद हम डूबे जाते हैं, कश्ती डूब रही है। और यीशु खड़ा हुआ और उस हवा को दोबारा फिर कहा ऐ हवा साकत हो जा। और वही हवा उसी वक्त रुक जाती है। हवा को पता था कि ये वही खुदा है जिसने कहा था कि आदम के अंदर चली जा। हालेलुया। किसने कहा था? ये वही कलाम जो खुदा के मुंह से निकलने
वाला था, तो उसने इनके कलाम निकला तो हवा को हुक्म दिया, तो हवा उस वक्त उसकी बात को मानती है। उसे पता है बेशक ये यीशु है, लेकिन ये कलमा तो अल्लाह है, ये कलाम है। और पानी से कहता है कि साकित हो जा, और पानी भी समझ गया इसने पहले इब्तिदा में मुझे कहा था आसमान को चढ़ जा और नीचे को चला जा और पानी जमीन पे, और पानी ने बात मानी थी। इस वक्त भी पानी ने देख लिया ये वही यीशु कलाम नूर खुदा के मुंह से निकलने वाली पावर है तो यीशु बनकर खड़ा है। मैं जानता हूं उस पानी ने कहा और हवा ने भी कहा और पत्थरों भी पुकार कर कहती है ऐ खुदा के कदूस, और पत्थरों भी पुकार कर कहती है ऐ खुदा के बेटे। लेकिन यीशु कहता है खामोश, किसी को ना बताना, ये चीजें सब यीशु को जानती थी कि ये खुदा का क्या है, कलाम है। और वो खुदा का कलाम मुजस्सम हुआ है जो खुदा के मुंह से निकला है, और वही कलाम मकतूबी भी कहलाया है क्योंकि कुतुब के अंदर, बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा गया इनके कुतुब तोमार किताब, कलाम किताब के लास्ट में अंदर आ गया। कलाम कहां आ गया? लास्ट में जब मुजस्सम भी हुआ तो उस वक्त भी और उसके बाद भी, उससे पहले भी, क्योंकि तवारीख थी, इल्हाम थे, तुरैत की किताबें थी। ये कलाम, ये कलाम क्या है? मैंने विस्तार से बोला था ये क्या है? बाइबल मुकद्दस कलाम जिसके वसीला से खादमीन पैदा होती है। ये वो कलाम है जिसके वसीला से नजात आती है। ये वो कलाम है जो कलाम में मकतूबी कुतुब तोमार और किताब के अंदर कलम बंद हो गया। ये कलाम खुदा ने तरीका अपनाया और नबियों की मार्फत, इब्रानियों की किताब के अंदर लिखा है कि खुदा ने हिस्सा पे हिस्सा नबियों की मार्फत कलाम किया और नबियों के ऊपर वही नाज़िल हुई या उनके लिए कलाम नाज़िल हुआ। कह ले कि रोया के अंदर खुदा ने दिखाया और खुदा ने उनको दिया और वो लिखते गए और लिखते गए और कलाम लफ्जों के अंदर तब्दील हो गया। अब कलाम लफ्जों के अंदर है। जो शख्स कलाम का मुताले करता है वो कलाम का मुताले वो भी कहने के करता है, लेकिन खुदा का चेहरा देखता है। लफ्जों के एक एक लफ्ज के अंदर खुदा की खूबसूरती है। एक एक लफ्ज जो शख्स पढ़ता है या कलाम का एक एक लफ्ज जो इंसान गौर से सुनता है, उसके अंदर खुदा एंट्री करना शुरू कर देता है। हम अगर कलाम को नहीं पढ़ते तो पढ़ें, अगर कलाम को नहीं सुनते तो हमारे अंदर कमजोरियां हैं। इसीलिए अगर कलाम को गौर से सुनेंगे या पढ़ेंगे तो यकीन करें आप हर तरह की प्रॉब्लम से आजाद हो जाएंगे, हर तरह की प्रॉब्लम आपसे खत्म हो जाएगी। क्योंकि कलाम क्या है? लास्ट पे उसने दिखाया कि मैं मौत के ऊपर गालिब हूं, आसमान और जमीन की कुंजियां मेरे पास है। और मकाशफे के अंदर है वो कहता है लास्ट पे आखिरी बात, मौत और आलमे रवा की कुंजियां मेरे पास है। यहां आकर हर चीज को कंप्लीट कर देता है। यीशु ने कहा कि मौत और आलमे रवा की कुंजियां, मौत की कुंजियां भी मेरे पास है, जिधर चाहूं उधर को चला दो। आलमे रवा की कुंजियां भी मेरे पास है, जहां रूहों का अड्डा, जहां रूहें जमा होती हैं, उनकी कुंजियां भी मेरे पास हैं। तो मेरे बंद किए हुए को खोल नहीं सकता, मेरे खोले हुए को बंद भी नहीं कर सकता, क्योंकि मैं अपने बाप से निकला हूं और बाप में वापस जाता हूं। और उसने हमें बाइबल मुकद्दस दी कि यही कलाम के अंदर मैं हूं। अगर तुम पढ़ोगे तो यकीन खुदा को अपना नजदीकी और आप खुदा के अंदर जज्ब होना शुरू हो जाएंगे। आमीन। आज के कलाम के सौ से खुदा को बरकत दे और खुदा की नेट हमेशा आपके साथ रहे। हालेलुया। आए अपनी आंखों को बंद करेंगे, एक बार अपनी आंखों को बंद करें
और हम छोटी सी दुआ करें। हालेलुया। हालेलुया। इसी तरह मेरे अज़ीज़ों अपने सरों को झुकाएंगे, आंखों को बंद करेंगे और हम खुदा के खादम जो कि हमारे दरमियान है बाबू शाहिद बशीर साहब, उनके साथ मिलकर कलाम की शुक्रगुजारी की दुआ करेंगे। हालेलुया। सीखा हमने आज इस कलाम के बारे में, तो खुदावंद के नाम के लिए जोरदार तालियां, जोरदार तालियां। हालेलुया। तो इसी तरह हम प्रस्तुत करते हुए खुदावंद के नाम को इज्जत और जलाल देंगे और इसी दरमियान अपने हदिया जात खुदावंद की हजूरी में नजर करेंगे, क्योंकि कलाम मुक़द्दस के अंदर लिखा है दिया करो ताकि तुम्हें भी दिया जाएगा। हालेलुया। यकीनन खुदावंद की कुदरत आपके दरमियान है। जब हम उसे पुकारते हैं तो वो हमारी दुआओं को सुनने के लिए मौजूद होता है। और यिर्मयाह की किताब के अंदर लिखा है कि मुझे पुकार और मैं तुझे जवाब दूंगा और बड़ी बड़ी और गहरी बातें जिनको तू नहीं जानता तुझ पर जाहिर करूंगा। जब हम उसके हुजूर झुक जाते हैं तो वो बड़ी बड़ी और गहरी बातें, गहरे भेद अपने आसमान के दरीचों को खोलकर हम पर जारी करता है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ गॉड। खुदावंद तेरा शुक्र, रूह कुदस तेरा शुक्र। भाई के साथ हम प्रोसेस करेंगे और इसी दरमियान हदिया जात खुदावंद की हजूरी में नजर करेंगे। कलाम मुक़द्दस के अंदर लिखा है जो कुछ दिल में ठहराया है उसी कदर दे, ना लाचारी से और ना दरे करके, बल्कि खुदावंद खुशी से देने वाले को अजीज रखता है। प्रेज़ गॉड। हालेलुया। और इसी तरह जो बहन भाई गवाहियों को देना चाहते हैं वो अभी से स्टेज पे आ जाएं ताकि गीत के फौरन बाद हम गवाहियों को सुन सकें और खुदावंद के नाम को इज्जत और जलाल दे सकें। हालेलुया, हालेलुया। आया आप मेरे साथ खुदावंद के नाम को मुबारक करें। खुदावंद यीशु मुबारक है। हालेलुया। यीशु नाम मुक्ति दिलाए, प्रेज़ गॉड। अंधेरों में राह दिखलाए। यीशु नाम मुक्ति दिलाए, अंधेरों में राह दिखलाए। खोल दे वो बंदे आसमान, जिंदगी का दे वो ही आराम। हालेलुया। खोल दे वो बंदे आसमान, जिंदगी का दे वो ही आराम। कौन सा नाम? मेरे साथ यीशु नाम, सब बोलेंगे यीशु नाम को पुकारेंगे। यीशु नाम, यीशु नाम। प्रेज़ गॉड। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। यीशु नाम जिंदगी का जहान, जिंदगी का दे वो ही आराम। यीशु नाम जिंदगी का जहान, जिंदगी का दे वो ही आराम। मेरे साथ
बहन भाइयों से दरखास्त है, जो घोड़ियों को देना चाहते हैं वो अभी से स्टेज पे आ जाएं ताकि वक्त को बचाया जाए। एक दुनिया की बहुत बड़ी सच्चाई है, भला कौन सी है कि यीशु ने हम सबके लिए अपना लहू बहाया है। बाया कि नहीं बाया? बाया कि नहीं बाया? हालेलुया। क्रूस पर लहू जो बहा है, दाग हर दिल का धुला है। क्रूस पर लहू जो बहा है, दाग हर दिल का धुला है। तेरे मेरे पापों का बोझा, प्रेज़ गॉड, हालेलुया। सब एक आवाज सुनकर गाते हुए खुदावंद के शुक्रगुजारी आपका और मेरा मुनाजिर खुदा कौन है? वो कलमा मुजस्सम कौन है जो आज आपने सीखा है? कौन है? कौन है? हालेलुया। तो मेरे साथ मिलकर यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। मुल्तान से हमारे दरमियान आए हैं प्रस्तुत के लिए। अब हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने हाथों को आसमान पर बुलंद करेंगे, हर एक आंख बंद हो जाएगी यीशु के नाम में। बोलेंगे थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। सब बोलेंगे थैंक यू जीसस, सब बोलेंगे थैंक यू जीसस। आसमान कर बुलंद करें। हालेलुया। आंखें बंद कीजिए, आपके हवाला कीजिए। इस कोरस के अंदर साथ बोलना है और हाथों को बुलंद करना है और खुदा की हजूरी में मगन हो जाना है। खुदा की हजूरी में इसी कोरस के अंदर मगन हो जाए, पुकारे खुदा को, खुदा जवाब देगा। आपने जो भी दिल में ठाना है वो आपका पूरा होगा। सब दिल में दुआ करना शुरू कीजिएगा। हालेलुया, 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 सब दुआ करें, सब दुआ करें। पाक रूह यहाँ मौजूद है, पाक रूह के शोले यहाँ
गर्दिश कर रहे हैं, यहाँ गर्दिश कर रहे हैं। पाक रूह की आग एक एक के दिल को देख रही है, आपकी आंखों से बहते आंसू देख रही है, आपके हाथों को बुलंद करना देख रही है। सब दुआ करना शुरू कीजिएगा। हालेलुया, दुआ करना शुरू करिए। हालेलुया, खुदावन, अजीम खुदावन, जारी कीजिए को इसको। हालेलुया, हालेलुया, होश तेरे रूह से कहेंगे, तेरे रूह से खुदा कहेंगे, तेरे रूह से सब कहेंगे, तेरे रूह से खुदा मैं साथ मिलकर तेरे रूह से मिलकर कहिएगा, तेरे रूह से खुदा खुदा हो जाएगा, ये पहाड़ भी मैदान हो जाएगा, सहरा में एक राह बन जाएगा, सहरा में एक राह बन जाएगा, कहिएगा, सब कहेंगे, तेरे रूह से सब कहेंगे, आपकी आवाज आनी चाहिए। तेरे रूह से खुदा तेरे रूह से अपना दायां हाथ उठा लेंगे, अपना दायां हाथ उठाएंगे, मूसा की तरह फतेहबंदी मिलेगी। अपना दायां हाथ उठाए, पीछे से भाई है, बहने हैं, अपना हाथ उठा ले दायां, फतेहबंदी नसीब होगी। हालेलुया, हालेलुया, खुदा तेरा फजल कीमती है, कुछ नहीं है जो मुमकिन नहीं। पलूस रसूल को खुदा ने कहा मेरा फजल तेरे लिए काफी है। हम सब छोड़ दे, इसलिए ये कहेंगे हम पे तेरा फजल कीमती है, कुछ नहीं है जो मुमकिन नहीं। आसमां जमीन पे उतर आएगा, आसमां जमीन सब कहेंगे, हमारी के सब कहेंगे, रूह से खुदा तेरे रूह से तेरे रूह से खुदा हालेलुया, दुआ करते जाइए, दुआ करते जाइएगा, अपने आप को संगम करें। खुदा की काइंडनेस आपकी जिंदगियों के अंदर काम करना चाहती है, तो श्रद्धा के दुआ करें, सुस्ती को कहने को छोड़ दें। हालेलुया, हालेलुया, दुआ करते ठहर जाइएगा, दुआ करना, सब दुआ करें। हालेलुया, आंधी का जैसे सन्नाटा, बरस बादल यूं तेरी वफा, तेज आंधी का जैसे सन्नाटा, बरस बादल यूं तेरी वफा का, गुलिस्तान भी सामने से हट जाएगा, हालेलुया, कहें, हालेलुया, से हट जाएगा, हालेलुया, कहें सब। हालेलुया, हालेलुया, सब दुआ करें, अपने दिलों के अंदर दुआ करना शुरू करें, ऊंची आवाज के साथ दुआ करें, जिस तरह खुदा
आपको गाइड करता है, वैसे दुआ करना शुरू कीजिएगा। अब वक्त है कि खुदा को पुकारा जाए, बोझ सा लिया जाए। हालेलुया, सब पुकारेंगे, दिलो जान से पुकारेंगे। हालेलुया, खुदा की आवाज आपको प्रेस करना चाहती है, बरकत देना चाहती है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सब दिल में दुआ कीजिए, दुआ करें, खुदा पाक आपके दरमियान में है। तेरा फजल कीमती कुछ नहीं है जो मुमकिन नहीं है। हम पे तेरा फजल कीमती है, कुछ नहीं सब कहेंगे। जो मुमकिन नहीं है। दरवाजा जो बंद वो खुल जाएगा, और दरवाजा जो बंद वो खुल जाएगा। सब कहें, सहरा में भी एक राह बन जाएगा, सहरा में भी एक राह बन जाएगा। तेरे रूह से, तेरे रूह से, तेरे रूह से खुदा तेरे रूह से, कहेंगे, सब कहेंगे तेरे रूह से। हमारी बारी है, तेरे रूह से कहें। तेरे रूह से, तेरे रूह से, तेरे रूह से खुदा यीशु के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। आंखें बंद रखें, आंखें बंद रखें। खुदा बाप की गैस, खुदा के जलाल का मस्सा आपके दरमियान काम करना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। सब दुआ कीजिए, सब दुआ कीजिए। खुदा पाक रूह आज इस पंडाल के अंदर जुबिश कर रहा है। बदरुगिफ्ती खत्म होगी, बे औलादी में औलाद मिलेगी, और हर तरह की बीमारी खत्म की जाएगी, क्योंकि खुदा पाक रूह यहाँ गर्दिश कर रहा है। खुदा पाक रूह यहाँ जुबिश कर रहा है। खुदा पाक रूह आपके दरमियान ठहरा हुआ है। खुदा पाक रूह आपकी जिंदगी के अंदर आना चाहता है। आंसुओं के साथ वे खुशी के साथ काटेगी, सब आंसुओं के साथ वे खुशी के साथ काटेगी। हालेलुया। कभी ये है, हमें बोलने की जरूरत है। बोलेंगे कोर्स के साथ, सब बोलेंगे। हमें बोलना है, मुंह खोलना है, बरकत तब मिलेगी। हमें बोलना है, मुंह खोलना है, बरकत तब मिलेगी, जरूर मिलेगी। हालेलुया, आवाज बुलंद हो, हाथ बुलंद हो जाए। बोले, सब
ये यीशु जिंदा है। कुव्वत मिलेगी, खुदा की कुव्वत आपके दरमियान है। फायर चाहिए, फायर चाहिए, फायर चाहिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। आप दुआ करें प्लीज, आंखें बंद करें, आंखें बंद करें। क्या पाक रूह मौजूद है, आपको देखता है। कहे वो मौजूद है, कहे वो मौजूद है। आपके दरमियान उसकी हजूरी मौजूद, उसकी याद, उसके शोले कहे वो कदूस है, कहे कदूस हो चुका है, कदूस हो चुका है। हालेलुया, शुक्र करें, शुक्र करें। फिर आ गया है, फिर आ चुका है, फिर आ चुका है, फिर आ चुका है। इसकी आवाज क्या गर्दिश करती है, आवाज क्रिया करती है। कहे, सब कहे, शुक्र करें। मिलकर मिलकर कहेंगे, कहे हालेलुया। सब दुआ कीजिए, सब दुआ कीजिए। जिनके जिस्म के ऊपर बदरू गिरफ्तगी है, साया काम करता है, आज वक्त है, आगे आ जाए। अगर वो नहीं आना चाहता, उसका बहन या भाई है, उसे आगे लेके आए। वक्त मखरसी का है, वक्त खलासी का है, वक्त निजात का है। बदरू गिरफ्ता लोग, बीमार लोग फर्स्ट लेयर में आ जाएंगे, आगे आ जाएंगे। साई वाले लोग आगे आ जाएंगे। जिनके ऊपर मसला चल रहा है, आगे आ जाएंगे, आगे आ जाए। शाबाशी, जिनके ऊपर साई का मसला चल रहा है, ये निजात का वक्त है, मखरसी का वक्त है। आपके लिए निजात पाक रूह कुदस की कुदरत के वसीला से यहाँ मौजूद है। खुदा की कुदरत आपके दरमियान ठहरी हुई है। खुदा का मसा आपकी जिंदगी को टच करना चाहता है, और खुदा का नूर आकाश शोला बनकर आपकी जिंदगी के लिए कारामत काम करना चाहता है। जो साईं का प्रॉब्लम महसूस होता है, वो आगे चाहिए। हालेलुया, हालेलुया, असीम खुदावंद, हालेलुया, 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 असीम खुदावंद। सब दुआ कीजिएगा, सब दुआ करें, सब दुआ करें। पाक रूह तेरी कसरत आ चुकी है, पाक रूह कसरत, 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 पाक रूह की कसरत, कसरत, कसरत यीशु के नाम से आ चुकी है। पाक रूह की कसरत यीशु के नाम से आ चुकी है, आ चुकी है, आ चुकी है। आगे लेते हैं। हालेलुया, सब दुआ कीजिए, सब दुआ कीजिए। पाक रूह की कसरत, पाक रूह की कसरत, पाक रूह की कसरत, पाक रूह की कसरत,
जोर बढ़ रहा है, पाकों की कसम का जोर बढ़ रहा है। सब दुआ कीजिए, सब दुआ कीजिए, सब दुआ कीजिए। यीशु के नाम से पाकों की आग अभी नासर हो चुकी, पाकों की आग अभी नासर हो चुकी है, पाकों की आग अभी आ रही है, पाकों की आग अभी एक एक बहन के पास है, एक एक भाई के पास है। अभी से पाकों की आग आपके दरमियान काम कर रही है। अजीजों, दुआ कीजिए, सब दुआ कीजिए, सब दुआ कीजिए, सब दुआ कीजिए, सब दुआ कीजिए। पाकों की आग आपके दरमियान गर्दिश करती है। अभी से फायर जारी हो चुका है, फायर जारी है, जारी है फायर। इब्लीस का असर अभी सैल हो जाए, सैल चल, ऑर्डर चल, ऑर्डर चल, इब्लीस चल, ऑर्डर शुरू हो जा, 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 ऑर्डर होना शुरू हो जा। यीशु के नाम से पाकों की कुदरत के वसीले से ये बदन अभी से आजाद हो, आजाद हो। ये बदन अभी इसी वक्त आजाद हो, अभी इसी वक्त यीशु के नाम से बदन आजाद हो। पाकों की कुदरत आपके दरमियान ठहरी हुई है। सब दुआ कीजिए, सब दुआ कीजिए। खुदावंद का प्यारा बच्चा आपकी जिंदगी के अंदर मिलकर को लेके आ रहा है। खुदावंद की आग आपके बदनों का अपरेड कर रही है। याद रखिए, खुदावंद की आग आपके बदनों का अपरेड कर रही है। जो बसैल वाले लोग हैं वो आगे आ जाएंगे, आगे आ जाएंगे, आगे आ जाएंगे। हालेलुया, 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 होशना। अगले जाए, हालेलुया। अभी भी अगले जाए, अगले जाए, हालेलुया। सब दुआ कीजिए, सब दुआ कीजिए। अगले जाए, हालेलुया, हालेलुया, होशना। तू अजीब है, तू अजीब है, तू अजीब है। पाकों की कसरत यहाँ मौजूद है। सब उगले, हालेलुया, होशना, हालेलुया। सब दुआ कीजिए कदूस मेहरबान के नाम से। सब दुआ कीजिए खुदावंद की कुदरत तस्वीरों को अभी से बदलों से ओपन करना शुरू कर दें। तस्वीरें ओपन, सबने जा, सबने उठ, 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 सबने जा। अब रिस सबने कर फायर, 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 फायर। यीशु के नाम से पाकों का मस्सा लेके आए बेटा, अब लेके ऊपर। हालेलुया, हालेलुया, होशना। पाकों का मस्सा अभी से काम करने के लिए तैयार है। बेटा आप नीचे चले जाइए, शाबाश, आप नीचे चले जाइए। हालेलुया, हालेलुया, होशना, हालेलुया। आप एक साइड पे हो जाइए, टीम एक साइड इधर हो जाएंगे, आप एक साइड हो जाइए। हालेलुया। जिनके ऊपर मसला चल रहा है, मैं कह रहा हूं कि पाक रूह की आग यहां मौजूद है। वो बदलों को क्लियर करना चाहती है। बसैल वाले लोग आगे स्टेज पे लेके आ जाएंगे, आगे लेके आ जाएंगे। टीम हमरा चलेगी, टीम आगे बढ़ेगी, टीम चलेगी, टीम आगे आ जाएगी। हालेलुया, होशना। आगे आ जाएंगे, आगे आ जाएंगे। हालेलुया। जगह देंगे भाई, जगह देंगे। हालेलुया, होशना, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप आगे आ जाए, आगे आ जाए। हालेलुया, हालेलुया। अजीम खुदावंद, अजीम खुदावंद, अजीम खुदावंद, अजीम खुदावंद। इस बदन को अभी से खुदावंद तो क्लियर करता है। फायर जारी हो चुका है, फायर अभी जारी है, फायर जारी है। फायर यीशु के नाम से जारी है, फायर यीशु के नाम से जारी है। चल, ऑर्डर जा, ऑर्डर जा। अपनी इसका जोर अभी इसी वक्त ऑर्डर जा, ऑर्डर जा, चल, ऑर्डर जा, ऑर्डर जा। छोड़ दे बंद को, छोड़ दे, छोड़ दे बंद को, छोड़ बंद को, छोड़ बंद को, छोड़ दे। चल, अभी निकल, अभी निकल, निकल जा अभी। ऑर्डर जा। मेरा यीशु यहाँ मौजूद है, आपके सामने खड़ा है। यीशु आपके सामने खड़ा है, 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 यीशु आपके सामने खड़ा है। अभी साइलेंट हो जा, साइलेंट, साइलेंट, साइलेंट। खुश हिलने का नहीं है, खुश तेरी जोत है। मेरा यीशु यहाँ मौजूद है, अपने तो लोगों को डिस्टर्ब करता है। सख्त हो जा, सख्त। यीशु की आग अभी से इस बदन को अभी क्लियर हो जा, क्लियर, क्लियर, क्लियर। 1 2 3 बेटा ओवर ले। हालेलुया, होशना, हालेलुया। अजीम खुदावंद, अजीम खुदावंद। तेरे पाक रूह की कसरत अभी से काम कर रही है, पाक रूह की कसरत अभी से काम करती है। चल, अभी से ऑर्डर जा, चल, ऑर्डर निकल, ऑर्डर जा, ऑर्डर जा। चल, छोड़ दे बंद को, छोड़ दे, छोड़ दे बंद को, छोड़ दे बंद को, छोड़, छोड़ दे। और बदन का अपरेट कर,
ऑपरेट 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 ऑपरेट। बदन को इसी वक्त पाक रूह की आग वाश कर दे। वाश 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 हो जा। क्लियर क्लियर क्लियर। गेट अप ऑपरेट। पाक रूह की आग होश को जारी कर दे। होश जारी हो जा। होश अभी जारी हो जा। होश जारी हो जा अभी। ब्रेन ओके हो जा। ओके ओके 1 2 3 ओके 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 ओके। यीशु की आग यहाँ मौजूद है और पाक रूह की घंटी का जोर आपका दिमाग ठहरा हुआ है। हालेलुया 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 हालेलुया। खुदावंद का जोर यहाँ मौजूद है। खुदावंद का जोर यहाँ मौजूद है। सब दुआ कीजिए जिन बदनों के ऊपर मसैल चलता है वो आगे आ जाएगी। खुदावंद का मसा बच्चे के ऊपर प्रॉपर काम करे। प्रॉपर काम करना शुरू कर। अभी इसी वक्त बच्चा बिल्कुल क्लियर होना शुरू हो जाए। हालेलुया होशना हालेलुया 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 हालेलुया। पाक रूह की कसरत यीशु के नाम से यीशु के नाम से। पाक रूह की कसरत यीशु के नाम से एक एक बदन के लिए काम कर रही है। एक एक बदन के लिए काम कर रही है। याद रखें एक एक बदन के लिए काम कर रही है। ये मुज़हिका खेज इस बात को मत लीजिए। यहाँ खुदा पाक रूह की कुदरत है वो यहाँ आपके बदनों को देख रही है। कोई प्रॉब्लम है तो ज़ैल हो रहा है। ज़ैल हो रहा है। प्रॉब्लम ज़ैल हो रहा है। तस्वीरें आउट हो रही है। तस्वीरें आउट हो रही है। चल आउट हो जा प्लीज। तो मौजूद है बदन को छोड़। चल सामने आ सामने आ। चल सामने आ। अब प्लीज सामने आ जा सामने आ जा सामने आ जा मौजूद हो जा। आग अभी से आग आग अभी आग आग आग। यीशु की आग पाक रूह के शोले बनकर बदन का ऑपरेट 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 अभी से जारी हो जा। अभी से अभी बदन के अंदर रहता है तो चल अप्रोच सामने आ। चल सामने आ सामना कर। निकल निकल छोड़ दे को। आंखें बंद कर आंखें बंद करी। फाइव जारी फाइव जारी फाइव 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 फाइव। बदन का वाश 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 अभी से वाश हो जा। चल वाश हो जा वाश हो जा। चल वाश हो जा वाश। बदन का मुकम्मल ऑपरेट हो। बदन का मुकम्मल ऑपरेट हो। मुकम्मल ऑपरेट हो जाए। मुकम्मल ऑपरेट हो जाए। यीशु के नाम से इसका ऑपरेट जारी हो जाए। ऑपरेट जारी हो जाए। ऑपरेट जारी यीशु के नाम से। हालेलुया होशना हालेलुया। खुदावंद तो अजीम है। खुदावंद तो भला है। तेरी कुदरत काम करती है। हालेलुया हो खुदावंद तेरा पाक मसा यहाँ मौजूद है। जख्मों को नॉर्मल कर। हर तरह का जख्म खत्म हो जाए। हर तरह का असर ज़ैल हो जाए। असर ज़ैल हर तरह का असर यीशु के नाम से चला जाए और हो जाए। पाक रूह की कुदरत पाक रूह की कुदरत यीशु की रोशनी बनकर इन बदनों के लिए मुकम्मल काम करे। तस्वीर का असर खत्म हो जाए। खत्म हो जाए। तस्वीरों का असर यीशु के नाम से चला जाए। बरकत मिले मसीह के नाम से। बरकत मिलना शुरू हो जाए। बरकत मिलना शुरू हो जाए। बरकत मिलना शुरू हो जाए। हालेलुया होशना। सब दुआ कीजिए सब दुआ कीजिए। मुतासरा बदन आगे आ जाएगी। मुतासरा बदन आगे आ जाएगी। असर अंदाज बदन आगे आ जाएगी। हालेलुया होशना हालेलुया। खुदावंद तो अजीम है। खुदावंद तो अजीम है। खुदावंद तो भला है। खुदावंद बच्चों के लिए तेरी गाइडेंस को मांगता हूँ। इन बच्चों के लिए तेरी गाइडेंस को मांगता हूँ। बदन क्लियर हो जाए। बदन क्लियर हो जाए। बदन क्लियर हो। बदन क्लियर हो जाए। यीशु के नाम से बदन ओके हो जाए। पाक रूह की कुदरत यीशु के नाम से काम करना शुरू करे। अभी से तस्वीरें आउट हो जाओ। आउट चल आउट हो जा। चल आ बदन का ऑपरेट 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 फाइल ऑपरेट करें ऑपरेट करें। यीशु के नाम से ऑपरेट जारी हो जाए। ऑपरेट जारी ऑपरेट जारी ऑपरेट यीशु के नाम से जारी हो जाए। जारी हो जाए जारी हो जाए। ऑपरेट जारी मसीह के नाम से हर तरह का असर खत्म हो जाए। हर तरह की वबा खत्म हो जाए। हर तरह की वबा यीशु के नाम से खत्म हो जाए। मसीह के नाम से खत्म हो जाए। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। असर आउट हो जाए।
असर और रुचा फाइल तुम्हें वाश करता है, फाइल तुम्हें वाश करता है, वाश करता है। चल और रुचा, चल आउट आउट आउट, चल निकल, छोड़ दे बंद को छोड़ छोड़ बंद को, चल निकल जा। मेरा यीशु यहाँ मौजूद है क्योंकि वो जिंदा है, उसकी आह यहाँ मौजूद है, उसका मसा यहाँ मौजूद है क्योंकि वो जिंदा है। और हर तरह का जादू, हर तरह का टूना, हर तरह का साया, चल और जा। आप अभी से वाश करना शुरू कर दे, बदन क्लीन हो जाए, बदन ओके हो जाए, ओके हो जाए, बदन क्लीन हो जाए, बदन क्लीन हो जाए। हर तरह का साया खत्म हो जाए, हर तरह का साया यीशु के नाम से मुकम्मल खत्म हो जाएगी। हर तरह की बीमारी, वीकनेस, प्रॉब्लम मसीह के नाम से खत्म हो जाएगी। वीकनेस, प्रॉब्लम, बीमारी, साया आउट शुरू हो जाए। अभी से आउट, अभी से आउट, अभी से आउट हो जाओ, आउट हो जाओ, चल आउट हो जाओ, आउट 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 हो जाओ, चल आउट हो जाओ। फाइल जारी, फाइल जारी, फाइल अभी जारी हो जाए, फाइल जारी हो जाए, फाइल जारी हो जाए, फाइल जारी हो जाए। यीशु के नाम से मतलब वाश हो जाए, 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 वाश वाश अभी वाश हो जा, चल वाश हो जा। यीशु के नाम से मतलब वाश हो जाए, वाश हो जा, चल वाश हो जा, आउट हो जा, अमरीश आउट हो जा। यीशु के नाम से हर तरह का साया, हर तरह का जादू खत्म हो जाए, खत्म हो जाए। अभी से मसीह के नाम से हर तरह की प्रॉब्लम मसीह के नाम से चली जाए, मसीह के नाम से चली जाए। बरकत मिले, ये सात खुशियों को भी शादवानी का करार पा जाए, ये सात खुशियों को भी शादवानी का करार पा जाए। खुदावन तेरा मस्सा काम करना शुरू करे, खुदावन तेरा मस्सा यीशु के नाम से काम करना शुरू करे। अभी इसी वक्त यीशु की आग पाक की कुदरत बनकर आइस को ठीक करना शुरू करे। आइस प्रॉब्लम अभी आउट हो जाए, अभी आउट हो जाए। आइस प्रॉब्लम अभी इस वक्त क्लीन हो जाए, कोई भी तब्दील हो जाए, बीमारी साया खत्म हो जाए। यीशु के नाम से कोई भी खुदा की पैदा हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। अजीम खुदावन तेरा मस्सा काम करना शुरू करे, तेरे पाक रूह की आग अभी से बदलों के लिए कारण साबित हो चुकी है। अभी छूटे, प्रेस कर दे यीशु के नाम से, ये बदलों को प्रेस कर, पाक रूह की कुदरत के वसीला से इन बदलों को खुदावन तो प्रेस कर, ताकि सारी प्रॉब्लम, वीकनेस, कमजोरी यीशु के नाम से खत्म हो जाए, खत्म हो जाए, खत्म हो जाए। वीकनेस, कमजोरी आउट अभी से आउट हो जाए, अभी से आउट हो जाए, अभी से आउट हो जाए। पाक रूह अभी गाइड करना शुरू कर दे, पाकस बेटी को गाइड कर, पाकस बेटी को गाइड करना शुरू कर दे, अभी से गाइड कर। तस्वीर का असर है, अभी से ज़ैल हो जाए, ज़ैल हो जाए, चल तस्वीर का असर ज़ैल हो जाए। यीशु के नाम से हालेलुया, 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 हालेलुया। जो भी प्रॉब्लम के अंदर है वो आगे आ जाए। हम लास्ट में अब दुआ करेंगे। हालेलुया, होशना। खुदावंत तेरी कुदरत तेरा मस्सा बदनों को क्लीन कर दे, खुदावंत तेरी कुदरत, खुदावंत तेरा मस्सा बदनों को बिल्कुल क्लीन कर दे, क्लियर करना शुरू कर दे। पाक रूह का मस्सा अभी से काम करे, पाक रूह की कुदरत अभी से काम करना शुरू करे। पाक रूह की गहरा मस्सा इन बदलों के लिए काम करना शुरू करे, अभी से काम करे, अभी से काम करे, अभी से काम करे, अभी से काम करे। पाक रूह की कुदरत खुदावंत का जलाल बनकर इन बदलों को अभी से क्लियर में डालना शुरू कर दे। तस्वीरें वबाई खत्म हो जाए, तस्वीरें वबाई यीशु के नाम से खत्म हो जाए। हर तरह की प्रॉब्लम और होना शुरू हो जाए, हर तरह की प्रॉब्लम यीशु के नाम से और होना शुरू हो जाए। अभी इस वक्त पाक रूह गाइड करना शुरू करें, पाक रूह गाइड करना शुरू करें, पाक रूह अभी से गाइड करना शुरू कर, अभी से गाइड करना शुरू कर। अभी इसी वक्त पाक रूह तेरी गाइडेंस अभी जारी है, गाइडेंस पाक रूह की जारी, अभी से 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 जारी। पाक रूह की गाइडेंस, पाक रूह की गाइडेंस, पाक रूह की गाइडेंस, पाक रूह की गाइडेंस अभी से जारी, अभी से जारी, अभी से जारी। पाक रूह की गाइडेंस यीशु के नाम से इन बदलों के लिए काम कर रही है। अपने दिलों को दुआओं के अंदर रखें। हालेलुया, होशना, हालेलुया। खुदावंत तेरी गाइडेंस अभी जारी हो चुकी है। इब्लीस जादू टोना हर तरह का तविस्ता का आउट हो जाए, अभी से आउट हो जाए, अभी से आउट हो जाए, अभी से आउट होना शुरू हो जाए। अभी से पाक रूह काम कर रहा है, इब्लीस का असर जाहिर हो जाए। अभी से फाइल फाइल
अभी से फायर काम करता है यीशु के नाम से पाक रूह का फायर मुकम्मल तौर पर इन बदरों के लिए खुदावंद काम कर रहा है। अभी इसी वक्त यीशु का मस्सा इन बदरों के लिए काम करना शुरू करें। हालेलुया 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 हालेलुया। खुदावंद मस्सा खुदावंद याद खुदावंद याद खुदावंद याद यहाँ मौजूद है मौजूद है मौजूद है यीशु के नाम से याद यहाँ मौजूद है मौजूद है। अभी से फायर 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 यीशु के नाम से इन बदलों के लिए काम कर रहा है। अभी से फायर आ चुका है फायर आ चुका है फायर यहाँ मौजूद है फायर यहाँ मौजूद है फायर यहाँ मौजूद है। सब दुआ के अंदर रहे सब दुआ के अंदर रहे यहाँ फायर मौजूद है फायर मौजूद है। सब दुआ के अंदर रहे आपका प्रॉब्लम हल हो रहा है। अब प्लीज जीरो रहा है जीरो 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 अब प्लीज चल आउट और ऐसा चल आउट और ऐसा आउट चल निकल जा छोड़ दे मन को छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे। फाइल 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 यीशु के नाम से इन बदलों के लिए फाइल इनका अपरेट करें अपरेट अपरेट यीशु के नाम से अपरेट 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 जोर के साथ चल अब प्लीज चलता रहे चल तुम्हें आग लगती है पाक रुकिया करिए कर ओके वन ओके ओके चल और जा चल। असीयत तो मिलती है तुम्हें असीयत मिलेगी असीयत पाक रो इसे क्लियर कर दे क्लियर हो जाओ अभी इस वक्त क्लियर 1 2 3 ओवरटे हालेलुया। इसी वक्त होश चाहिए हो जाओ होश लौटा होश लौटा 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 यीशु के नाम से बदन गेट अप हो जाए गेट अप हो जाओ गेट अप यीशु के नाम से गेट अप हो जाए। इसके सिर के ऊपर क्रॉस लगा दे क्रॉस लगाई बाप बेटा रूह कुदस के नाम से दबाई हालेलुया दर पड़े आगे जाइए आप हालेलुया होशना हालेलुया हालेलुया अजीम खुदावन तेरे पाक रुकिया इस बेटे के लिए काम कर रही है। अब इसका जोर चल अब छोड़ दे को छोड़ दे बंदा को निकल अब इससे ज़ाहिर हो जा फाइल बदन का अपरेट अभी से अपरेट जारी हो जाए अपरेट जारी यीशु के नाम से इस बदन का अपरेट जारी हो जाए। सर से लेकर पांव के तले में तक पाक रूह की आग अबलीस को जला अभी चला आग लग जाए आग बदन को ओके कर दे हालेलुया आग अभी जारी हो जाए आग जारी बदन का वाश करे अभी बदन का वाश हो जाए बदन का वाश हो बदन का वाश हो जाए अपरेट पाक रूह की आग अभी से अपरेट करें अपरेट जारी हो जाए यीशु के नाम से इन बदलों का अपरेट हो जाए यीशु के नाम से हर तरह का प्रॉब्लम का जो कि अज़ा का प्रॉब्लम है इसी वक्त गवाही में तब्दील हो जाए यीशु के नाम से पाक रूह की मदद काम करना शुरू करे पाक रूह तेरा मस्सा इन बेटियों के लिए गवाही का बहस बढ़ाए तस्वीरें गवाही आउट हर तरह की प्रॉब्लम यीशु के नाम से चली जाए हर तरह की प्रॉब्लम मसीह के नाम से चली जाए चूहे बंधन टूट जाए अपने सिद्धियों का असर चला जाए और अभी से तस्वीर का असर सैल हो जाए असर चला जाए और अभी से निकल जाए पाक रूह की आग बदन को ओके करें हालेलुया। आए सब मशतरका दुआ करेंगे
आइए सब दुआ करेंगे। हालेलुया 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 होशना। अभी इसी वक्त जिस्म क्लियर होना शुरू हो जाओ, अभी क्लियर हो जाओ। तस्वीर फाइव वाश, फाइव वाश, वाश वाश, फाइव वाश, वाश वाश वाश, बदल वाश हो जा। चल आउट हो जा, निकल निकल से हो जा, आउट हो जा, आउट हो जा, चल आउट 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 हो जा, चल अभी निकल निकल अभी। छोड़ दे बदन को, छोड़ दे बदन को। यीशु के नाम से ये बदन आजाद किया जाए। अभी इसी वक्त तस्वीर बदन से आउट होना शुरू हो जाए। पाक रूह की आग बदन का वाश करेगी, पाक रूह की आग बदन का वाश करना शुरू करेगी, वाश करना शुरू करेगी, वाश करना शुरू करेगी, वाश करना शुरू करेगी, वाश करना शुरू करेगी। इसी वक्त इस बदन के लिए पाक वसा काम करे, वही में खुदा की पैदा हो जाएगी। हालेलुया होशना, क्रमशः काम करे यीशु के नाम से। इस वक्त ओके हो जाओ, गेट अप यीशु के नाम से क्लियर हो जाओ। ओके गेट अप हो जाओ, रिप्लाई। हालेलुया होशना, हालेलुया हालेलुया। अजीम खुदावन, अजीम खुदावन, अजीम खुदावन तो भला है। आए हम सब मिलकर लास्ट की दुआ करेंगे। आए सब दुआ करेंगे। हालेलुया होशना। सब अपनी आंखों को बंद करेंगे। हालेलुया होशना। सब आंखें बंद करेंगे। खुदा की हज़ूरी में ठहर जाइएगा। ये मज़बा है, यहाँ पाक रूह मौजूद है। पाक रूह आपके सामने वर्क करता है, काम करता है। सच्चाई का खुदा है, गाइडेंस देता है, दुखों को सुख में तब्दील करता है, दिल की मर्रादों को बर्रे काट लाता है, गोलियों को पैदा करता है, बेऔलादी में औलाद प्रोवाइड करता है, जुए बंधन तोड़ देता है, दिल की मुरादों को पूरा करता है। और जितनी बेटियां और बेटे आज तेरी हज़ूरी के अंदर ठहरे हुए हैं, इन सब के लिए मैं तेरा खादिम होने के नाते टीम के हमरा इनके लिए दुआ दुआए खैर, तंदुरुस्ती, खैर आफियत चाहता हूं। तस्वीरें इन बदलों से चली जाए। हर तरह की तस्वीर बदलों को छोड़ दे, छोड़ दे, अब छोड़ दे, छोड़ दे। तस्वीर आगे जाए, आगे जाए। तस्वीरें बदलों से चली जाए, चली जाए, चली जाए। जिसम आजाद, 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 आजाद हो जाए, आजाद हो जाए। अब इस वक्त यीशु तैयार फैल चुकी है, फैल चुकी है, फैल चुकी है, फैल चुकी है। यीशु तैयार मौजूद है। इन बदलों का ऑपरेट करें, ऑपरेट करें। तस्वीरें ऑपरेट के जरिए चली जाएंगी। तस्वीरें यीशु के ऑपरेशन के जरिए आउट हो जाएगी, जिसम आजाद हो जाएगा। पाक रूह तो कसम के साथ काम कर रहा है। इन बदलों के अंदर तो ऑपरेट को चल जाए। बेऔलादी के अंदर औलाद आ जाए, बेटियों के लिए बेऔलादी के अंदर औलाद आ जाए। जितनी बच्चियां, जितनी बेटियां ये आवाज रिसीव कर रही हैं, उनके लिए इसी साल में औलाद प्रोवाइड की जा चुकी है। आप कहें आमीन। खुदा जमीन पर मैंने कैद कर दिया है, आसमान पर तू कैद कर चुका है। खुदा बाप जिन बेटों, जिन बच्चों ने, जिन भाइयों ने तेरी हज़ूरी में अपनी इल्तिमास से रखी हुई है, उनके लिए मैं खुदावन तेरा कभी बाजू मांगता। दुखी जिंदगियों के अंदर सुख आए, रोशन मुस्तकबिल प्रोवाइड किया जाए और घर के हालात क्लियर हो जाए। जिन घरों के अंदर गम
सोशल कुमार है, प्रॉब्लम है, अभी से इन भाइयों के लिए खुशी आ जाए और गम जाते रहे। खुदा बाप तेरी कुदरत काम करे इन बच्चों के लिए। मैं खुदा मन तेरा खादिम के नाते मैं खुदा मन तेरे बाप बच्चों को मांगता हूँ, तेरी कुदरत को मांगता हूँ और तेरे जलाली कभी बासु को मांगता हूँ और तेरा कभी बासु बुलान यहाँ हो चुका है। ऐ खुदावन तू अजीम खुदा है। खुदावन खुदा ये तीसरी सालाना शफाइया कन्वेंशन इन दुखी लोगों के लिए निजात का बाइस बन चुकी है, बदरूगिफ्ता लोगों के लिए आजादी की बन चुकी है। और खुदावन जिन घरों के अंदर प्रॉब्लम है सुख में तब्दील हो जाए। खुदावंतों के खुदा जितने भी लोग दूर नजदीक से इस पंडाल के अंदर मौजूद है, जो भी उनके ऊपर बीमारी का असर है, दबाव का असर है, प्रॉब्लम का असर है, अभी से ज़ैल हो जाए, अभी से ज़ैल हो जाए, अभी से खत्म हो जाए। जमीन पर कैद करता हूं खुदा बाप अभी से अपने बच्चों को तो बहुत सा दे चुका है। मसीह खुदा तेरी कुदरत तेरा मस्सा काम करता है, क्योंकि तू जिंदा है। तू मरकर जब जिंदा हुआ तो पांव पर फतेहमंदी तूने पाई तो कहा मेरे खादमी मेरी फतेहमंदी के वसीला से बड़े बड़े काम करेंगे। ऐ खुदावंद तेरी फतेहमंदी आज हमारी जिंदगियों के अंदर दस्तक है और आज फतेहमंदी इन बच्चों के लिए बरकरार हो जाए। यीशु तेरी फतेहमंदी बेटियों के लिए बरकरार हो जाए। जिन बहनों की खुदावंद जच्चा बच्चा के दौरान प्रॉब्लम चल रही है वो गवाही में तब्दील हो जाए। और खुदावंद खुदा तेरे लोगों का आना यहाँ मुबारक ठहरे। खुदावंद खुदा आज के सेटअप के वसीला से इन बच्चों को ब्लेस करे। खुदावंद खुदा आज अपने कभी बाजू को बुलंद करके इन बेटियों बेटों को तो गवाही में तब्दील कर दे। ऐ खुदावंद जितने भी बहनों और भाइयों ने अपने हाथों में पानी और तेल रखा हुआ है यीशु के नाम से पाक लहू में तब्दील हो जाए, पाक लहू में तब्दील हो जाए, मसा में तब्दील हो जाए और यीशु का वैसा होने के लिए गवाही का बाइस बन जाए। खुदा की कुदरत के वसीला से बाइस बन जाए। खुदावंद खुदा ये सेटअप जिन हाथों के वसीला से इस्तेमाल किया गया है उनको प्रेस कर। खुदावंद खुदा जितने भी भाइयों ने बहनों ने जितने भी बच्चों ने कलीसिया ने रुपया पैसा सेटअप के लिए दिया है उनके लिए तेरी ब्लेसिंग को मांगता हूँ, तेरी बरकत को मांगता हूँ और तेरी प्राप्ति को मांगता हूँ, तेरे रोशन मुस्तकबिल को मांगता हूँ। खुदावंद उनकी जिंदगी में तेरी बरकत आए, रुपया पैसे की कमी ना हो, बल्कि इस सेटअप की वसीला से खुदावंद तेरे नाम को इज्जत जलाल मिले और बरकत उन हाथों को मिले जिन्होंने यहाँ मेहनत की है, इस सेटअप के लिए वक्त गुजारा है, सेटअप के लिए काविश की है, रुपया पैसा भी दिया है। उन सब के लिए मैं तेरी ब्लेसिंग, तेरी बरकत, तेरी उन्नति, तेरा मस्सा रोशन मस्तक में मांग चुका हूँ, जमीन पर कैंप कर चुका हूँ, आसमान पर हो चुका है। खुदावंद खुदा यीशु नासरी तू अजीम, तू कादर है, तू हमारी आवाजों को दुआओं को सुनता है। मैं दुआ करता हूँ पूरी टीम के लिए, पूरी टीम जो तेरे बंदा के साथ है ऐसे ही ब्लेस होती चली जाए। आने वाले वक्त के लिए इनके घरानों खानदानों में भी मुज़्ज़ात हो, अच्छे खादम साबित हो सके। और खुदावंद दुआ करता हूँ सौन के लिए और 22 सौन वाले के लिए, उसको ब्लेस कर बरकत दे। और जितने बच्चों ने बेटियों ने बेटों ने प्रशिश की है, गीत गाए हैं, उनको बरकत देना, ब्लेस करना, ताकि उनकी जिंदगी के अंदर तेरी ब्लेसिंग पाक का शोला बनकर फेंक जाए और वो बच्चे अच्छे खाद में खाद बीज पैदा हो जाए, उनको असर मुस्तकीम पैदा कर दे। ऐ खुदाबंदों के खुदा यीशु नासरी आज की रात हमारा पार्टी तेरे लोगों के लिए दुआ में झुकना मोर्चे का बाइस बन चुका है।
मुझसे हो चुके हैं, गोइयां पैदा हो चुकी हैं। तो खुदावन यही सदा साल ये कवंश कभी भी खुदावन डावाडोल ना हो सके, बल्कि इस कवंश के वसीला से जब सदा साल हो तो बहुत सी जिंदगियां निजात पाए, जिंदगी पाए, कसरत की जिंदगी पाए। खुदावन यीशु इब्ने दाऊद, हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। खुदावन हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं कि तूने अपने बंदा को अपने बंदा की टीम के साथ इस्तेमाल किया है और बच्चों के लिए गोइयां पैदा की हैं। पाक रूह तेरा शुक्रिया अदा, खुदावंदों के खुदा तेरा शुक्रिया अदा, पाक रूह तेरा थैंक्स बोलते हैं। पाक रूह तू सच्चाई का रूह है और तू सच्चाई के साथ अपने बंदा के साथ हमेशा की तरह अब भी है, अपने बंदा की टीम के साथ अब भी है। खुदा पाक रूह तेरा शुक्रिया अदा करते हैं, हमेशा हमारा साथ देना ताकि हम दुखी लोगों के लिए तेरे वसीला से काम कर सके, वर्क कर सके, मुसात हो, गोइयां पैदा हो जाए। खुदावन तेरा शुक्र आज की शाम, आज के लम्हा, आज के वक्त, आज की घड़ी जो भी मैंने जमीन पर कैम किया है वो तू आसमान पर कैम कर चुका है। यीशु के कादर, फतेहमंद, जलाली और पवित्र नाम से आमीन। आए दुआरबानी बहन के साथ अदा करेंगे और सब पीछे पड़ेंगे। हम सब खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में शामिल होंगे। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे और जिस तरह हम कर्जदारों को माफ करते हैं हमारे कर्ज भी हमें माफ किए जाएं। हमें आजमाइश में न डाल बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह और कुदरत जलाल हमेशा तेरे हैं। आमीन। फरिश्ते का सलाम सलाम मरियम पुरफजल, खुदावंद तेरे साथ है, तू औरतों में से मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। ऐ मुकद्दस मरियम खुदा की मां, मोहम्मद गुरवार के वास्ते अब और हमारी मौत के वक्त आमीन। लास्ट की ब्लेसिंग खुदा के खातम से रिसीव कीजिए। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, रूह पाक की मोहब्बत, पाक रूह की रफाकत और शराकत, हाज़िर जमायत और मुक़द्दसी आलम के कलीसियाओं के साथ, इस्राएल के साथ, एक एक आए हुए मेहमान के साथ, पूरी टीम के साथ और तेरे खुदावंद मुक़द्दसी लोगों के साथ हमेशा से हमेशा तक होती रहे। आमीन आमीन। अजीजों, अगर आपकी जिंदगी में कोई गवाही है तो यहां आकर आप शेयर कर सकते हैं। किसी की जिंदगी के अंदर गवाही हो जैसा कि मैं शेयर कर रही हूं। मेरी तरफ से आप सबका सलाम। मेरी गवाही कुछ इस तरह है कि पिछले साल हमने पास्टर जी को, मेरी सिस्टर है बड़ी, उनके लिए प्रेयर रिक्वेस्ट रखी थी कि खुदा ने उनको 3 बेटियां दी थी, तो अब उनको बेटे की विश थी। तो हमने खुदावन के हाजिम से रिक्वेस्ट की और बहुत से हाथ में भी दुआ करते रहे। तो आज खुदावन मेरे बेटे जैसी बरकत दी, तो इसी बात के लिए मैं शुक्रगुजारी के तौर पर ये गवाही पेश कर रही हूँ। तो जोरदार ताली बजा दीजिए खुदा के हाथ। जी, अगर और किसी जिंदगी में की गवाही है तो वो चंद लम्हों के अंदर वो शेयर कर सकता जी। और हमारा भाई घर में हो, यकीनन खुदा के ईमान से हमने दुआ करवाई और हम घर गए और मेरा भाई हमारे घर में था, हमारे जाने से पहले वो घर आया था। गवाही है मेरी मसीह यीशु की कि उसने मेरी ज़िंदगी में जलाली काम किया। मैं खिदमत करता हूँ तो मेरे अंदर तफरीके बड़े ज़्यादा थे कि मैंने इधर नहीं जाना, मैंने उधर नहीं जाना, तो बस अपने मतलब जो सेटअप था उसी में रहना। लेकिन भाई सैमुअल ने मेरे साथ मिलकर दुआ की, हम बैठते हैं फैक्ट्री में तो दुआ की, तो उन्होंने मुझे ये खुदा की आगाही दी कि हमारी तलीम जो है वो तफरीकों की तलीम नहीं है, बल्कि हमारी तलीम एक दूसरे को मोहब्बत के साथ उनके साथ चलना है। तो मैंने इनके इस बात को अपने दिल में रखा, तो खुदा ने मेरी ज़िंदगी में ये जलाली काम किया है।
तो मैं 3.5 साल के बाद फर्स्ट टाइम किसी प्रेयर मीटिंग में आया हूँ। तो इसमें यीशु ने मेरी ज़िंदगी में काम किया है भाई सैमुअल के ज़रिया से। खुदावंद इसको बरकत दे। और मैं आपको भी ये कहता हूँ कि आप भी तफरीकों में ना बढ़े, बल्कि मसीह यीशु के कामों में हर एक के साथ मोहब्बत के साथ पेश आए, क्योंकि हमारी तालीम मोहब्बत की है। शुक्रिया जी। सब वादे मेरे खुदाबंद के सच्चे हैं, मेरे खुदाबंद के सब वादे सच्चे हैं। कौल टल उसके अहद भी पक्के हैं, मेरे खुदाबंद के सब वादे मेरे खुदाबंद के। तब खुदावंद इब्राहिम को नजर आया और कहा कि मैं खुदाए कादिर हूँ, तू मेरे हजूर में चल और कामिल हो, और मैं अपने और तेरे दरमियान अहद बांधूंगा और तुझे बहुत ज्यादा बढ़ाऊंगा। तब फरमाया, देख मेरा अहद तेरे साथ है और तू बहुत कौमों का बाप होगा।